خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. عزیزان من، آپ نے پورا دن اگر فیصلہ سننے کے لیے خود کو مشقت میں ڈالا ہے تو میں آپ کو قرآن کا فیصلہ سناؤں اور اسی طرح متوجہ کروں. یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ جو عدل اور انصاف سے کام لے گا، ایمان کی صحت میں رہے گا اور اعمال صالحہ کی طرف رکھے گا، ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو صبر پہ اور حق پر ہیں، وہ کامیاب رہے گا. اس فیصلے کی طرف متوجہ جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں، باقی سب خسارے میں. یہ فیصلہ بھی قرآن کا ہے. لہٰذا اپنی سماعتوں کو بلا وجہ ضائع بھی نہ کریں. جو ضروری وقت ہے وہ کام اسی وقت پہ صحیح لگتا ہے. نماز کا وقت ہے تو پھر آپ کی توجہات ادھر ادھر نہ جائیں. اسی طرح قرآن کو وقت دینے کا وقت رمضان الکریم کا خاص وقت ہے، لہٰذا اس کو بھی ضائع نہ کریں. اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کی اسلامی علمی معلومات میں اضافہ ہو. یہ پروگرام بھی اس لیے ترتیب دیا گیا ہے. میں اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کو جو اس پروگرام کی زینت ہیں، ہمارا خاصہ ہیں اور پاکستان کا سرمایہ ہے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے شفیق مہربان، گفتگو میں ایک خاص انداز اور سلیقہ رکھتے ہیں. علم کے معاملے میں فقہ احکام سب پہ خوبصورت درس ان کو حاصل ہے. مفتی ہمارے پاس تشریف فرمائے مفتی ابراہیم قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں. ہمیشہ گفتگو رہتی ہے تو آپ سے میں بذات خود بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں اور مجھے یہ اتفاق اور اتحاد اور خاص طور سے ان تمام موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. علامہ سید حسن ظفر نقوی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ ساتھ بہت پیاری آواز پاکستان کی، نعت ہو، منقبت ہو، حمد ہو، ہر شے میں ایک خاص رکھتے ہیں اور باقاعدہ عقیدے کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، عقیدت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج بوجھو تو جانے میں ایک شخصیت ہمارے پاس ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری آنکھوں کا، ہمارے سروں کا تاج ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ یہاں تک پہنچنے کے لیے 10 سوالات ہیں اور ان 10 سوالات کی سیڑھیوں پہ جو چڑھیں گے وہ 2 افراد ہیں. آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شامر حسین ہے اور جامعہ ترتیل القرآن رحیمیہ کا طالب علم ہوں. جی ماشاء اللہ. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسما طاہر ہے، میں ڈاؤ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا وقت علماء کرام کی اجازت سے شروع ہوا جاتا ہے. بسم اللہ. اہل بیت میں سے ہیں؟ جی دیکھ ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ معروف معنوں میں ہمارے ہاں جو معروف عرفی معنی ہے اس میں اہل بیت میں سے نہیں ہے. معروف معنوں میں اہل بیت میں سے نہیں ہے. جی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں علامہ نہیں صاحب؟ بیٹا نہیں. ان 10 اصحاب میں سے نہیں ہیں. آپ پوچھیں، ہم اشارہ بعد میں دیں گے. آپ اشارہ بعد میں دیں گے. آج بھی علامہ صاحب نے اس بلکہ توقع کی ہے کہ یہ ٹیم جیت جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے ان کا. نہیں جیتیں گے. مفتی یہ صاحب جو اہل بیت کا کہا ہے نا اس پر یہ اس سے آپ ہنٹ نہ چلا جائے. مفتی صاحب یہ آپ مجھ پہ چھوڑیں نا کہ ابھی میں اس کا یعنی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ذہن پھر اہل بیت کے اس سے بالکل ہٹ جائے. ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. وہ میں اشارہ دوں گا، آپ اطمینان رکھیں. ابھی آپ کا امتحان ہے. غزوہ بدر میں شریک تھے؟ جی آپ نے بنیادی سوالات مس کر دی ہیں، لہٰذا یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے علامہ صاحب اس کا جواب نہیں. کیا سوال کیا ہے؟ غزوہ بدر میں شریک تھے. اب ایک بنیادی سوال ہے جو آپ نے مس کیا ہے. تو اب آپ جتنا دور چلے جائیں آپ ایک پتنگ ہیں جو کٹ چکی ہے. نہیں ابھی کرنے دیں کچھ سوال، پھر ہم ہنٹ دے دیں. پلٹ سکتے ہیں، کوشش کریں. مرد ہیں؟ میرے خیال ہے مجھے چپ رہنا چاہیے. کیا کہہ رہے مرد ہیں؟ مرد ہیں. چوتھا سوال آپ نے پوچھا مرد ہیں، جواب ہے نہیں. نہیں. اب دیکھیں نا وہ 4 سوال تو ضائع گئے. 4 سوال. علامہ صاحب آج گرمی کی شدت میں کچھ اضافہ ہے؟ یہ تو بہت لگ رہی ہے. ویسے بھی موسم ویسے بھی گرم ہے پورے ملک کا. جی انتہائی گرم. ملک کا موسم گرم ہے. ہاں بھیا سوال کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ یہ انعام دینے کے آپ لیے سیاست بیٹھے ہوئے میں ہیں. کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں؟ بس مناسب مناسب حد تک.
मुनासिब सी। इस हद तक एक पाकिस्तानी को लेना चाहिए बस। लेना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, बस ऐसे। मुहाजिरीन में से हैं? जी, सवाल पूछा गया मुहाजिरीन में से हैं। जी महाजरीन। जी मुहाजिरीन में से हैं, यानी आपने हिजरत फरमाई है। 5 सवाल जो शुरुका हमारे साथ हैं, डॉक्टर अस्मा और शामीर, दोनों को 5 सवाल पूछने की इजाजत मजीद है। जब 5 पूछा सवाल औरत है, जब पूछा महाजरीन में से है, तो अगला सवाल एक बहुत ज़रूरी था, उस तरफ उसकी तवज्जो नहीं जा रही। जी, जरूरी सवाल नहीं पूछ रहे आप। अच्छा अल्लामा साहब, सवाल पूछना दीन में क्या कबाहत है? कोई आलिम दीन से सवाल पूछता है तो नाराजगी का इजहार भी कुछ लोग करते हैं, क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? अलग बात है, कुछ उल्टे सीधे सवाल कर लेते होंगे, वरना सवाल पर ही तो सारे कायम है ना? सवाल पर ही तो सब, सवाल नहीं होगा तो जवाब कहाँ से आएगा? सही। और फिर वो मारूफ जुमला है कि नहीं? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलोनी कबल तक पूछो, सवाल जब तक नहीं पूछेंगे जवाब कैसे? आप स्कूल कॉलेज कहीं भी मदरसा कहीं भी पढ़ते हैं, जब तक आप अपने उस्ताद मोहतरम से सवाल नहीं करेंगे आपकी गुत्थी कैसे सुलझेगी? सही। सवाल का सलीका और यह हदीस है, यह मशहूर मक़ूला है कि सवाल इल्म की कुंजी। जी बेटा जी, ताला लगा इसी हुआ है। खुलफाए राशिदीन की निस्बत में से हैं। इसका जरा एक्सप्लेन करें, निस्बत से क्या मुराद है? आप वाज़ेह तौर से पूछें। उसमें उस दौर में सभी को निस्बत थी खुलफाए राशिदीन से। मतलब किसी खुलफाए राशिदीन के घराने किसी से- खुलफाए राशिदीन क्या है, नाम लें? किसी मतलब जो 5 खुलफाए राशिदीन हैं, हाँ, उसमें से किसी से उनकी निस्बत कोई ताल्लुक? मुमकिन है एक से ज्यादा से हो, मुमकिन है कि एक से ज्यादा से हो। सवाल आप सही नहीं कर रहे ना। ऐसी हस्तियां भी हैं जिनका ताल्लुक एक से ज्यादा हस्तियों के साथ है। यानी आप यूं पूछ लें, किसी खलीफा राशिद से कोई निस्बत, कोई एक भी निस्बत है तो हम शायद आसानी महसूस करें जवाब देने में। किसी एक, आप जब खुलफाए राशिदीन कहते हैं ना बेटा, तो मुमकिन है कि 2 से हो, मुमकिन है 3 से हो, मुमकिन है 4 से हो। सही फरमा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छा अल्लामा साहब, सवाल और जवाब के मामलात में मैं ज़रा समझ रहा हूँ, वो जनाब मूसा से कुरान यानी अल्लाह ताला खिताब करता है कि ये हाथ में क्या है मूसा, और ये तो सब चीज़ें उसको पता है, तो फिर ये पूछने का मकसद क्या है? नहीं देखे ना, ये एक बार होता है कि समझाना है। जैसे हम जब किसी दूसरे को कोई बात समझाना चाहते हैं ना, तो अपने किसी बच्चे से कहते हैं, किसी और से बात, तो कुरान मजीद की सुन्नत इलाही है, ताकि तहकीक की सूरत में हमारे सामने बात आए ना, जो क़यामत तक लोग आ रहे हैं उनके सामने कैसे आएगी बात, जब तक जनाब मूसा का जवाब नहीं आएगा क्या है तुम्हारे हाथ में, मूसा ये कहेंगे तो वाक़या सामने आएगा ना, वरना वाक़या की सूरत में कैसे हमारे सामने आएगा? हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है, फिर क्यों बार बार कहता है सर पूछो? अज़वाज मुतहरात में से हैं। सवाल आपने पूछा, क्या वो शख्सियत अज़वाज मुतहरात में से एक है? मुफ्ती साहब जी हैं। जी बिल्कुल है। अब आप लोग पहुंचे ट्रैक। अब आप करीब आए। सिर्फ 4 सवाल आप मजीद पूछ सकते हैं और इतने ही कुछ मिनट आपके पास हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताल्लुक है? बड़ा कोई कि हजरत बकर सिद्दीकी सिद्दीक रज़ी अल्लाह से ताल्लुक है? सवाल है, बिल्कुल है। हाँ, एक तरह से ताल्लुक है, उनसे भी ताल्लुक है। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन कमाल है। एक तरह से ताल्लुक तो है। ताल्लुक है। माइक को बिल्कुल आपने पकड़ लिया है कि हमारी गुफ्तगू लीक ना हो। आप कंफ्यूज ना हो, ये कंफ्यूज भी करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, गुफ्तगू लीक होने की बात हो रही है तो हम बाज़ किसी की कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉल आती है रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, फिर किसी को भेजते हैं, तो ये शरन जायज़ है अखलाकियात के अलावा? अगर उसका ताल्लुक सिर्फ इल्मी सवाल से है, मालूमात से है, उसमें कोई राज की बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सामने वाले की इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं। जरूरत नहीं। हो, ठीक है। हाँ भाई, अब आपके पास कोई सवाल है? शामीर, डॉक्टर साहिबा, क्या आपके मतलब आपके ऊपर मुनाफिकीन की तरफ से कोई बहतान लगाया गया था? बहतान लगाया गया। लगाएंगे। तो साहब ने फरमाया कि बहतान लगाया गया था। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह आपके पास 2 सवालात हैं, आप ठहरना भी गुजारिश नहीं, ठीक है? गवारा नहीं है। मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। मैं बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि मुफ्ती साहब आते तो मैं आपके नाम से हिंट दे देता
मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब तशरीफ फरमाएं और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जनाब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको तहाइफ मुबारक हों। आपके पास तोहफे आए हैं चेस की तरफ से और आपके पास तोहफे आए हैं प्योरीफायर फ्लेयर की तरफ से। ये तोहफे आपको आके लेने पड़ेंगे, ये खुद चल के आपके पास आएंगे नहीं। आइए, मैं मुफ्ती इब्राहिम साहब से गुजारिश करूंगा कि शख्सियत का ज़रा तारुफ हो जाए, 2 पल ही सही। जनाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ना, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिनत अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हैं और महबूब रब्बिल आलमीन के ख़िताब से मशहूर हैं, सिद्दीक़ा के ख़िताब से मशहूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली वो वाहिद बीवी हैं जो कुंवारी थी, आपके निकाह में आई। क्योंकि जितनी अज़वाज आपके निकाह में आई वो सब सय्यबात थी, या वो मुतल्लक़ा थी या वो पहले बेवा थी। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन का मामला ऐसा नहीं है। बस सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ, हज़रत आयशा ने कुछ मफ़ाखिर होते हैं लोगों के, वो बसा औक़ात बयान किए जाते हैं तहदीस नेमत के तौर पर। तो हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने अपने कुछ ख़साइस बयान किए। फरमाया कि मेरी एक ख़ुसूसियत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में मैं वाहिद ख़ातून हूँ जो कुंवारी हुज़ूर के निकाह में आई, मेरी एक ख़ुसूसियत ये। दूसरा ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसा औक़ात मेरे साथ एक बिस्तर पर होते थे और वही इलाही का नुज़ूल होता था। और मैं तीसरा ये कि मेरा निकाह बाद में हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिए जिब्राईल अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरीर में और रेशम के कपड़े में मेरी तस्वीर दिखाई और ये कहा कि यह आपकी दुनिया और आखिरत की ज़ौजा है। और फरमाया मेरे ख़साइस में से एक ख़ुसूसियत ये है कि जब मुझ पर तोहमत लगी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, तो उसकी बारात ज़लीख़ा के ख़ानदान के एक बच्चे के ज़रिए कराई गई। दूसरों पर तोहमतें लगती हैं, उनके आयज़ व अक़ारिब उसकी बारात करते हैं। लेकिन ज़मीन पर तोहमत लगी और अर्श पर आसमान की बुलंदियों पर मेरी बारात के लिए कुरान करीम की सूरत उतारी गई, सूरह नूर उतारी गई, उसकी आयात उतारी गई। फरमाया मेरी ख़साइस में से ख़ुसूसियत ये है कि मेरा जो घर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी आरामगाह बना। अल्लाहु अकबर। और मेरी ख़ुसूसियत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ उस वक़्त हुजूर का जो सर था वो मेरे सीने पर था। माशाअल्लाह। और हम ये कहते हैं कि किसी ने पूछा था कि मक्का अफजल है या मदीना, तो उसने कहा ना मक्का अफजल है ना मदीना अफजल है, फ़जीलतों का मरकज़ हुजूर की ज़ात है। हुजूर मदीने में चले जाएं तो मदीना अफजल है, मक्के में चले जाएं तो मक्का अफजल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर का सर हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की झोली या सीने पर था तो बिल यकीन उनसे अच्छी कोई जगह उस वक़्त कायनात में नहीं थी। सुभान अल्लाह। हम यहाँ और पर जी आखिरी जी फरमाया कि एक ख़ुसूसियत मेरी ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक और शिकम करीम में सबसे आखिरी जो चीज़ गई है, फरमाया वो मेरा लुआब है। वो कैसे? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत महसूस हुई मिसवाक करने की, तो आपने मेरे भाई अब्दुर्रहमान के पास मिसवाक थी, उस पर नज़रें गाड़ी, तो मैं समझ गई कि हुजूर को ज़रूरत है मिसवाक की। फरमाया मैंने वो चूँकि मिसवाक खुश्क थी तो मैंने अपने डाढ़ों से चबा कर, और जब मिसवाक को जब भी चबाया जाए तो वो उस वक़्त तक मिसवाक के काबिल नहीं होती जब तक कि इंसानी लुआब की रतूबतों से वो तर ना हो जाए। तो फरमाया वो मैंने उसे चबाया और चबाने के बाद हुजूर की खिदमत में पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक किया
اور پھر اللہ رب العزت سے ان کا وصال ہوا. یوں آخری چیز جو حضور کے معدے میں پہنچی، پیٹ میں پہنچی، وہ میرا لعاب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قربتیں ہیں اور یہ نسبتیں ہیں جن کا احترام ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ نسبت جس سے ہو جائے اس کا رتبہ بڑھ جایا کرتا ہے. جناب حضرت حمیرہ یعنی پیار سے سرخی والا اور لال رنگ والا ایک مخاطب کرنے کا انداز بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی رہا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے اور گفتگو ہوگی. آج الف لام میم میں قرآن سے متعلق گفتگو ہوگی. کس قدر ضروری ہے کتاب اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور کیا رویہ ہمارا قرآن کو لے کر ہے. آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان